गुड मॉर्निंग. ओके, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था. फ्रॉम फ्यू फेसेस आई फील दैट दे हैव नॉट डन द होमवर्क. हाउ मेनी ऑफ यू चेक्ड अबाउट कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड? फैंटास्टिक, वेरी गुड. आंसर क्या है? व्हाट अबाउट डिविडेंड? हाउ टिल व्हाट अमाउंट डिविडेंड रिसीट इज एग्जेम्प्ट? 10 lakh rupees. Very good. So if you can imagine big investors. Now do you remember at least two names of big investors which we discussed yesterday? Those billionaires. Rakesh Junjunwala, वो तो अपने को पहले से ही पता है. And Ramdev Agarwal, Baba Ramdev Agarwal. Okay. Porinju Veliath. So you can imagine that their income obviously might be very, very high. ऐसे केस में they used to earn so much money but without paying even 1 rupee tax. किसके पेट में दर्द हुआ? Government. They said this is not done. We will ask you to pay tax, but up to a certain amount we'll give it as an exempt amount. उसके ऊपर आपको tax भरना पड़ेगा. So for dividend amount is how much? 10 lakhs. So please understand a very basic concept here. 10 lakhs is like a basic exemption limit. Yes or no? Basic exemption limit means what? Let us understand. Ki, let us say I am one of the example. I am one of the billionaire investors. Okay, and my dividend income is 11 lakh. Okay, my question is, will you have to pay tax on entire 11 lakh now, or only the differential 1 lakh? Only the differential 1 lakh. So that is why we are saying that first 10 lakhs is like a basic exemption. Anything and over and above 10 lakhs will be charged at the rate of. Very good. That is at the rate of 10%. But what if you fall in a higher tax bracket? अगर आपका खुद का tax higher tax bracket में है, so I'm sure you might have learned some basics of income tax. Like जिनका income 10 lakhs के ऊपर जाता है, they have to pay tax at the rate of 30%. Okay. So assume that my income is above 10 lakhs. Okay. In that case, tell me, on long-term capital gain or on dividend, will I have to pay at the rate of 30% or only at the rate of 10%? Only at the rate of 10%. So that's a special tax rate. Irrespective of my level of income on dividend exceeding 10 lakhs, I have to pay tax at the rate of 10%. Is this okay? What about LTCG? 1 lakh. Basic exemption limit is 1 lakh. Is it basic exemption again? Huh? Jैसे example again. If I gain 1,50,000 rupees, I'll have to pay tax only on 50,000 rupees. Everyone okay till here? Yes. Again, additional 50,000 rupees जो है, इसके ऊपर कितना rate से tax भरना पड़ेगा? At the rate of 10%, irrespective of my income level. दोनों homeworks clear है एकदम अच्छे से? So before we move on, मेरा भी एक homework था ना? क्या था मेरा homework? Share certificate दिखाना था ना आपको? Okay. So this is a small share certificate photograph. One of our clients. Is it visible? So acha, I'll zoom it out. If you can see this, so dekho, this is actually like a book. Can you see this? It's actually like a book, bound book जैसा ही है. Pages है इसमें, ढेर सारे pages है. All these are share certificate leaflets. I'm not sure if the clarity is that good or not, but can you see a small perforation here? There is a small perforation. Is it like a pain slip? बैंक में पेन स्लिप देखा होगा ना? So we fill some details here, we fill some details here. This is tone off. ये किसके पास जाता है? बैंक के पास. अगर पेन स्लिप है तो, the bigger part goes to the bank. The small part is kept with us. That is about pain slip. What happens with the share certificate? This big part will be given to shareholder. And ये किसके पास रहेगा? Small वाला with the company. Is this okay? So this is actually a share certificate wherein physical, कल अगर आपको याद है मैंने बोला था, one is demat share certificate, one is physical share certificate. Quickly tell me, all private limited companies even today will have share certificate in physical format. Private limited companies. But if I'm talking about listed companies, majority of their shares should be in the demat format. Is this okay? Yes. चलो, so अगर आपने यहाँ पे देखा तो I want a quick answer. यहाँ पे लिखा है equity shares each of ₹10. What is this? 10 rupees? Face value. Remember this concept which we discussed yesterday? So there are many students who feel, ma'am, how will we understand what is the face value? भगवान ने आंखें दी है, दिमाग दिया है,
देखो, it is written very clearly on the share certificate. It is rupees 10 face value. Can this share be split now? Remember yesterday's concept? Yes. Can this share be split? Could it be split as 5-5? Yes. तो इसको मतलब कैसे whitener लगाएंगे? नहीं ना, whitener नहीं लगाना है ना अपने को. So what will be done? Tell me. What will happen to this book? Will it be useful or useless now? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? One more time. What is the face value of the share certificate? 10. Is it written or is it printed? It's printed. Tomorrow, if the company decides that the new face value post split should be 5 rupees per share, तो इसके ऊपर whitener लगाएंगे क्या? नहीं. तो क्या करेंगे इसका कुछ यूज है क्या इस बुक का पूरे? Actually not. All the share certificates will be as good as of no use now. So ये इतना अपन डिटेल में जाने नहीं वाले, बट टेक्निकली इसको बाय बैक टाइप में करते क्या बताती हूँ. Assume that you all had one such share certificate. Everyone had one such share certificate. And I am the company owner. Company owner को क्या बोलते थे by the way? Promoter. Very good. Okay. So you come back to the company. Okay. You submit this share certificate to the company. Okay. What will I do? What will I do? आपके पास एक share certificate है 10 रुपए का. मैं क्या करूँ? Cut सबसे पहले. Because now it's of no use now. And I will issue you only one share certificate or 2 share certificates now. 2 share certificates. क्यों? उसके ऊपर face value क्या लिखा रहेगा? 5 rupees. Alternatively क्या हो सकता है देखो? Alternatively, I can issue you only one share certificate. यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? Equity shares of how much? 5. And यहाँ पे नीचे क्या है देखो? Number of shares held. What will I write here? 1 or 2? I'll write here 2. Why is this to be done? If you remember yesterday, even if the share splits, should my value remain intact or value should go down? Value should remain intact. So 10 रुपए का एक शेयर क्या है? या फिर 5 rupees के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2 shares. My value will remain intact. Is this understood? Yes. And फिर यहाँ पे you can see all these big people will sign off, like managing director, authorized signatory if any. Okay, ये आपके पास न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. न्यू फेस वैल्यू विल बी व्हाट? वन लास्ट टाइम विल बी 5 rupees. अच्छा, ये छोटा सा पार्ट किसके पास रहने वाला है? विद द कंपनी. कैन यू सी ऑलमोस्ट डिटेल्स तो वही है, जैसे नेम ऑफ द शेयर होल्डर है, एड्रेस है, नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ पे अपने न्यू फॉर्मेट में कितना आने वाला है? नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स विल बी 2. ओके, एंड दैट्स इट. ऑथोराइज सिग्नेटरी, डेट वेट सब कुछ आ जाएगा. सो नाउ कैन यू विजुअलाइज कि कुछ ऐसे शेयर सर्टिफिकेट दिखता है. But if you are talking about DMAT, ये आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा. Directly you will get an account statement. In the account statement you will see, okay, this X number of shares of this company, Y number of shares of that company. That will be in your statement format. Okay? Yes? चलो, so that is it about what we discussed yesterday. आज अपन fresh discussion से start करने ही वाले हैं. But before that, I always okay. चलो, so yesterday we discussed few concepts. कौन से concepts? Who can tell me what all did we discuss yesterday? एक कोई भी concept अगर याद है? Any one concept that you remember we discussed yesterday. So every day I have this habit. First we'll recap what we did yesterday and then we move on. Promoter. And you have to tell me who is the promoter? Owner of the company, who starts the company. Okay. Any other concept? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू अभी हमने रिवाइज किया. अभी वाले शेयर सर्टिफिकेट में 10 rupees was the original face value. So now I hope you understand anything, any value which is written on the face of the document. That is the literal meaning. I'll come again. Any value which is written on the face of the document is the face value. Okay? Yes. So face value का concept किया. और क्या किया? अच्छा. Tell me it's not appearing. ठीक है. So दिख नहीं रहा ना आपको? ठीक है, चलो, नो इश्यूज. डायरेक्टली बोल देते. तीसरा कौन सा हमने किया था? डिविडेंड. डिविडेंड के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? इट्स मैंडेटरी टू बी गिवन एवरी ईयर और इज इट द डिसीजन ऑफ द कंपनी? द डिसीजन ऑफ द कंपनी. Did we discuss any company which has loads and loads of profit but does not give dividend? Google, Apple, both concepts we discussed.
उसका लॉजिक याद है? कंपनी ने क्या बोला? हम री इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा आपको दे पाएंगे एज ए रिटर्न. उसके बाद भी कंपेयर डिविडेंड विथ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बोला? डज द बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट एवरी ईयर मैंडेटरीली? यस. अच्छा, इंटरेस्ट के लिए कुछ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है क्या कि इतने तक इंटरेस्ट मिला तो टैक्स फ्री? एफडी के ऊपर इतना इतना इंटरेस्ट लेके जाओ टैक्स फ्री, ऐसे कुछ है? डिविडेंड के लिए था ना? डिविडेंड के लिए कितना है? 10 lakhs. If I earn interest of even 10 rupees, is that interest taxable? Yes, if it is an interest on FD. I'm not talking about interest on saving account. Interest on FD, even if I earn 10 rupees interest, that will be completely taxable. Okay? Dividend के बाद next concept कौन सा किया था? LTCG क्या था full form? Long term capital gain. Okay? Long term कब बोलते हैं? If you have held it for more than 1 year. And if you buy it at 100, sell it at 120, it's a gain. So that is what in totality we call it as long-term capital gain. Okay. Isme we talked about exemption. Today only we discussed how much is the basic exemption? 1 lakh. Anything over and above that, taxed at the rate of 10%. Next point we discussed was stock split or share split. वो भी अभी discuss किया. 10 rupees का 5 rupees. अच्छा, could the company have taken a decision that will split the face value from 10 rupee to directly 1 rupee? Allowed or not allowed? Allowed. In that case, what will happen to the share value? I want a correct answer. Assume original market price. Original market price was 10,000 rupees. Original market price was 10,000 rupees. At that time, face value was 10 rupees. Now the new face value is 1 rupees. The new market price will be 1,000 rupees. Remember yesterday's ratio? Yes. So it is something like this. 10 रुपए face value के लिए उसका market price was 10,000. For 1 rupee face value, obviously market price will drop down to 1,000 rupees. Is this okay? Yes. उसके बाद कोई और concept discuss किया था? Top line, bottom line. Top line was what? Turnover, and bottom line is nothing but profits. Okay. Yesterday we had taken example of Britannia Limited and how their top line was increasing, but bottom line was increasing in higher proportion or lower proportion as compared to top line? Bottom line was increasing in a higher proportion as compared to the top line. So was it a good sign? Obviously, yes. फिर हमने share price के बारे में बोला. Started at 800 something and it had moved up till what? 4,000 something. But current market price was only 3,000 something. Bad sign, na? No. What had happened? Because of that share split, the share price had dropped. Acha, could there be any other reason why share price could drop? So there could be some bad news in the company. That there could be a bad news. Like when Patanjali was in full swing, initially when Patanjali kicked in, that time Britannia, ITC, everyone was scared. Ab tera kya hoga Kalia? Every company was posting worst results as compared to their original results. So ऐसे time में क्या share price correct हो सकता है, drop हो सकता है, yes or no? Yes, there could be multiple reasons. Acha, tell me logically, the concept which we discussed about stock split yesterday, a very, very similar concept, wherein the market price is also going to drop or increase in the similar proportion, is the concept of a bonus share. Have you heard about this? Bonus share. What is bonus? In simple words, it's free shares. So we are starting with a new concept today. कल के हो गए ना, सभी खत्म हो गए ना concepts? Yes. So we are going to start up with a fresh concept today. You can give the next heading as bonus shares. So in simple words, as I mentioned, what is bonus? Free shares that you get. Okay. So many a times company declares a ratio of giving bonus shares. Let's understand how does this work. For example, company declares we are giving bonus in the ratio of 1:1. ऐसे declare होता है. Company says we are giving bonus in the ratio of 1:1. इसका meaning कौन बता सकता है मुझे? For every 1 share held, you will get 1 bonus share. Okay? You will get 1 bonus share for every 1 share held. Simple है. अब इसी logic से थोड़ा सा आगे जाते हैं. Assume original market price before bonus. Original market price before bonus was rupees 1,000. Logically बताना है. Post bonus
पोस्ट बोनस आफ्टर 1:1 इसका मार्केट प्राइस सेम रहना चाहिए, कम होना चाहिए, डबल होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए? ओके, कम होना चाहिए. Did you understand my question? Originally, I had assumed in my portfolio, I had 10 shares of this company. Company has declared bonus in the ratio of 1:1. Now, new shares, did I get additional 10 shares free of cost? Yes. Now, total number of shares in my portfolio are 20. So, 10 plus 10 मिल गया मुझे. So, my original net worth, assume I have only one share with me, this one company share with me, original net worth was how much for me? 1000 into 10, ये मेरा value of investment बोल सकती हूँ मैं. My original value of investment was how much? 10,000. What will be my new value of investment? Should it be 20,000 or should it remain at 10,000? Post bonus. 10,000? 20,000? Ideally, the logic works same. Same means what? एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये थी. अब उसी एक शेयर्स के आपको और एक शेयर मिल गया. नाउ यू हैव गॉट 2 शेयर्स. अच्छा, इसका तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. नहीं, ऐसे 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 रेशियो नहीं किया जाएगा. That will have to be divided by 2 basically. So one share के लिए 1,000 was the price. Now with the bonus shares, now you'll have 2 shares in your portfolio. Correct? So now what happens? That 1,000 rupees value will drop down to 500. Your value still remains intact. Okay, the logic works same as stock split. But quickly tell me what happens in bonus. Does the face value remain same or face value changes? Face value remains same. Market value will be impacted. Face value will remain same. Then what changed instead of face value? Number of shares changed. Okay. Those who have learned something about finance, those who are pursuing CA, अब ये जो मैंने टर्म यूज किया ना, बिफोर बोनस, पोस्ट बोनस, इसी को तो बोलते हैं कम बोनस, एक्स बोनस. ऐसे याद है क्या कुछ पढ़ा आपने सीए के टाइम पे? कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम राइट्स, एक्स राइट्स, सेम चीज. ओके, so what happens with this? Understand, originally I had how many shares? Let us take an example one more time. Originally I had only one share. Company has declared in the ratio bonus in the ratio of 1:1. New, how many shares now I have? Totality mein 2 shares. My value will remain same. My value will remain same. It has to remain at 1,000 only. Okay, in that case what will happen? Tell me. My market price of the share will drop down to 500. Okay, but now tell me what happens next. Mathematically 500 agreed. Mathematically. But do you think if the share price goes to 500, more and more people can afford that share? Or less people will afford the share now? More people can afford the share. Demand बढ़ेगा. Demand बढ़ेगा तो share price और ऊपर जाएगा. So slowly and steadily the share price now again goes on increasing. Okay, and once it goes on increasing, now you are at a benefit. How? Understand? Let us take this example one more time. Original price, फटाफट बोलो, 1,000. Original number of shares, 1. New number of shares, 2. New price, 500. You can say it something like this. मैं अभी वो ratio नहीं बना पाई थी, but you can just imagine something like this, कि इसका value 1,000 है, ये 1,000 ही रहना है. तो what will be this? कैसे हो जाएगा ratio? मैं रेशियो बना नहीं पाई थी ना अभी, वो डबल हो रहा था ना. So just correct it. So एक शेयर था, 1,000 प्राइस था, टोटल मेरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,000. 2 शेयर्स के साथ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन विल स्टे एट 1,000. हाउ मेनी, आई मीन व्हाट शुड बी द करंट मार्केट प्राइस नाउ? 500 should be the current market price. But now understand what is the benefit to the investor then. 500, is it more and more easy for investors to buy into this share now? Yes. अब इससे क्या होगा बोलो फटाफट? ज्यादा डिमांड बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस विल राइज. नाउ अज्यूम द प्राइस गोज अप एंड अप फ्रॉम 500 टू डा करके वापस आ गया 800 पे. करेक्ट, 800 पे प्राइस आ गया. नाउ डू आई मल्टीप्लाई दिस विथ ओनली 1 और डू आई मल्टीप्लाई इट विथ 2 नाउ? With 2. So can I say as a shareholder, I will benefit more as and how the price rises, because my multiplier will increase. Is this understood? Yes. So bonus में अभी मैंने क्या बोला? Number of shares will change, yes or no? Yes.
Will my face value change? No. Will the market value ideally remain intact? Yes. Again understand, पागल लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? बोनस देने के बाद शेयर प्राइस will drop. Every company share price will drop. What do they think? Something is bad. There's some bad news in the company. Even in spite of giving bonus, their share price is halved. And some people even might sell shares. They are the most mad people who are selling the shares. That is the right time where you should buy the shares. You will get it at a lower price. Price movement will be very high. And you will be at an amazing position. मैं आपको इन्फोसिस का एक स्टोरी बताती हूँ. बोनस शेयर का बहुत फेमस स्टोरी है इन्फोसिस का. ओके, बोनस से कितना इंपैक्ट होता है ऑन द नेट वर्थ. अंडरस्टैंड दिस. ओरिजिनल इशू प्राइस ऑफ इन्फोसिस इन 1991 वाज समवेयर अराउंड, आई गेस ओरिजिनल इशू प्राइस इनका कुछ तो 400-500 के रुपीस के आसपास था. अज्यूम करते हैं उस टाइम पे 10 शेयर्स बाय किए थे. इन 1991 वाज 5,000 रुपीज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर एनीवन. 5,000 बहुत भी बड़ा है या स्टिल मैनेजेबल है? स्टिल मैनेजेबल है. 1991 में 5,000 रुपीज. कितने शेयर्स बाय किए होंगे? 10 शेयर्स. यहां तक ओके. नाउ इन्फोसिस हैड गिवन बोनस 8 times in the ratio of 1:1 till date. 8 बार 1:1 का बोनस इशू दिया है. नाउ यू कैन इमेजिन उस टाइम पे जिसने 10 शेयर बाय किए थे कितना हुआ होगा उसका आज. ओके, सबसे पहले फर्स्ट बोनस 1:1. सेकेंड बोनस क्या करूं अभी ऐड? थर्ड बोनस. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब मैं +80 करूंगी ना. फोर्थ बोनस, नेक्स्ट फिफ्थ बोनस, नेक्स्ट सिक्स्थ बोनस, नेक्स्ट सेवेंथ बोनस, नेक्स्ट एट्थ बोनस. अच्छा क्या हो गया? 640 + 640 था ना अपना लास्ट. 640 + 640 1280 शेयर्स, जिसका पहले कितना बाय किया था? 10 शेयर्स. ओके, नाउ वेट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मार्केट प्राइस. तब की कुछ तो 300 रुपीज 400 वॉटेवर जितनी भी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. आज कितनी मार्केट प्राइस है? 670 के आसपास है. ओके, सो इवन इफ आई मल्टीप्लाइड विथ 670, 8.5 लाख है ये. दिस इज अ माइंड ब्लोइंग अमाउंट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? 3,000 4,000 5,000 वॉटेवर. ये किसका कमाल है? बोनस शेयर्स का कमाल है. यहां तक ओके है? बोनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज. वन मोर कंपनी व्हिच हैज गिवन बोनस ऑलमोस्ट 3 or 4 times इज लार्सन एंड टुब्रो. ओके, सो जिनके पास L&T के शेयर्स है, दे विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग 1:1, 2:1, 3:1, whatever. Enjoy free shares. Will your market price fall down? X bonus, will your market price fall down? Yes. Is there anything to worry? No. It will be more affordable. People will buy more. The share price will go up. Some students ask me, ma'am, ये share price decide कौन करता है? Who decides कि L&T का price will be 1,200? Who decides Infosys का price will be 600 something? मैं decide करती हूँ. SEBI decide करता है. कौन decide करता है? Demand and supply. This is plain economics. Absolutely plain economics. More demand, less supply. क्या हो जाएगा? 11th standard economics. This is. So let us take this position one more time. Assume you all want to buy some share. Let's take example of Britannia. Yesterday's example. You all want to buy Britannia share. So मान के चलो demand है अभी आप सबसे मिला के. So everyone is not buying only one share ना? She is buying 5 shares, she is wanting 10 shares, she is wanting 20 shares. सबका डिमांड मिला के मान के चलो it is 200 shares. फिलहाल there is only one more investor in the market who is wanting to sell the shares. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है. So now who is going to be the one who is going to decide कि बेचना किस प्राइस पे? सेलर इज इन अ डिमांडिंग पोजीशन. आप सब लोग बैठे ना, हमको चाहिए. मैं बोल रही हूँ मेरे पास है, उसके पास है, हम दोनों के पास ही शेयर अभी है, एंड वी वांट टू सेल इट, बट वी आर इन अ वी डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड. समझ में आ रहा है ना? सो डेफिनेटली ऐसे केसेस में क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल अदर देन स्टॉक मार्केट ऑल्सो. एवरीवन हैज हर्ड अबाउट अनियंस.
देयर इज ऑलवेज अ टिपिकल होर्डिंग इन द मार्केट. एक ऐसे टिपिकल फेज आता है जब अनियंस का भाव पागल जैसे बढ़ जाता है. सुना है ऐसे कभी? एवरी टाइम पॉलिटिशियंस विल डू दिस. दे विल होर्ड द अनियंस इन देयर वेयर हाउसेस. होल्ड करते हैं, स्टॉक करते हैं वेयर हाउसेस में. इससे क्या हो जाएगा? अनियंस का शॉर्टेज होगा, यस और नो? शॉर्टेज होगा. सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा है, प्राइस विल राइज. एट दैट टाइम प्राइस ऑफ अनियंस राइज. आ रही बात समझ में? कोरिलेट हो पा रहा है? बट एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन है, मान के चलो. सप्लाई साइड इज मोर, डिमांड साइड इज लेस, प्राइस विल fall. Is this okay? This is plain economics. All the investors in the market will decide whether prices will rise or prices will fall. Is this okay? So हमने जो बोनस का कॉन्सेप्ट लिखा था उसके आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है. बोनस शेयर्स डैश, these are free shares. These are free shares issued by the company. These are free shares issued by the company to the investors. To the investors. Okay, let's write down one example also. Example, bonus declared in the ratio of what? हमारा example 1:1. Bonus declared in the ratio of 1:1. Original market price. Original market price into bracket. अब technical word बोलना है, because whenever you watch all these business channels, they'll not say before the dividend is declared and after the dividend is declared. Use कौन सा करेंगे terminology? Cum dividend, ex dividend. अच्छा, one minute. Also understand the full form ना? What is cum dividend? Cumulative of dividend. CUM, cumulative of dividend is cum dividend. Ex dividend क्या रहेगा? Excluding dividend. No. Okay, so these are very typical short forms used. You must be aware about that. Cum dividend. कितना प्राइस था cum dividend का? 1000. आगे क्या लिखेंगे? Ideal price into bracket ex dividend. Ideal price into bracket ex dividend कितना रहेगा? Ideal price ex dividend will be 500. Is this okay? पक्का? And एक और बहुत awesome concept देखा हमने, that who decides the share prices. तो बहुत लोगों को एक doubt रहता है, who actually decides it. So just write down a one-liner for this as a next concept also. Who decides share prices? डैश करके क्या लिखेंगे? इट्स एज गुड एज द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट फोर्सेस भी बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है. So today, moving on to the next concept after bonus and after deciding कि क्या होता है आपका bonus का concept, we are moving on to the types of security markets. So you'll often come across these terms: primary market and secondary market. Okay, very common terms in share market: primary market and secondary market. I'll compare this with a very simple example in Bollywood. Okay, Bollywood में whenever any hero or heroine comes out with their first film, तो उसमें क्या आता है? आपने कभी अगर मूवी के टाइटल्स देखे तो स्टारिंग आता है या इंट्रोड्यूसिंग आता है? इंट्रोड्यूसिंग है ना. इंट्रोड्यूसिंग, जो कोई भी हीरो का नाम है, जो कोई भी हीरोइन का नाम है. तो ये पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं. वैसे ही पहली बार जब कोई स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में आता है के बजाय क्या बोलो? शेयर मार्केट में आता है पहली बार, तो इसको आप बोलेंगे दे आर कमिंग थ्रू द प्राइमरी मार्केट. पहली बार आ रहे हैं. I'll give you a simple example. Patanjali. Like yesterday I talked about Britannia. I said, if you are eating biscuits of Britannia, buy shares of Britannia. Now many people might say, no, we are hardcore Patanjali fans. These days there are so many households with hardcore Patanjali fans. You will say, why not buy Patanjali shares?
Babaji will be happy. Shall we buy Patanjali shares? Anyone can buy Patanjali shares right now? Can we buy Patanjali shares right now? सोचा ही नहीं, बाबा जी को पूछना पड़ेगा. Can we buy Patanjali shares right now? Any idea? Yes or no? No idea. We can't buy Patanjali shares right now. Why? It is not listed on the stock exchange. मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाती हूँ. आई सर्च पतंजलि, आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग. ओके, सो राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस? इज इट अ कंपनी? यस. अगर आपको कल का अपना एक डिस्कशन याद है, मैंने आपको बोला था सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं, हम सब ने कल एक कंपनी स्टार्ट की थी ना. एंड व्हाट वाज दैट? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. फिर हमने सोचा और बड़ी कर देते हैं, तो हमने उसको बना दिया एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. A very similar case had happened with Infosys also. If you know this, Narayan Murthy and Sudha Murthy, they had started Infosys in one room. तब आपको लगता है वो BSE NSE पे listed रहेगा क्या? Obviously not. It must have been a small private limited company with only 3-4 people in the company. Finish. But जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगती है, do you think more funds will be required? Yes. So assume that there are hundreds of people here. We all are Infosys. We all are starters, promoters of Infosys. And there are hundreds of people here who believe that Infosys can turn out to be a very big company. हम बोलते हैं हमको पैसों की जरूरत है. Can you give us money? I want correct answer. All these 100 people say yes, we are going to give you money in your company. हम इनको बदले में क्या देंगे? Shares. अब ये भी कौन बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए. और 100 लोग आ गए, वो बोलते हमको भी Infosys में इन्वेस्ट करना है. और 500 लोग आ गए. Can we still keep it as a private limited company? So there is a company law requirement. जिन्होंने पढ़ा है company law, maximum number of members, maximum number of shareholders in a private limited company कितने हो सकते हैं? 200. जिन्होंने company law नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रही हूँ specifically. क्या होता है बोलो? How many shareholders can be there maximum in a private limited company? Maximum can be 200. ओके, मैंने आपके लिए ड्राइंग बना के लाया सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन द क्लास. सो हमारा कल का ही कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. वी आर नाउ टेकिंग अ पैरेलल एग्जांपल ऑफ व्हाट? इन्फोसिस. मैक्सिमम मेंबर्स मतलब ही क्या? शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं बोलो फटाफट? 200. ओके, अब 500 लोग और आ गए जिनको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. कैन वी डायरेक्टली एक्सेप्ट देम एज शेयर होल्डर्स? कैन वी डायरेक्टली एक्सेप्ट देम एज शेयर होल्डर्स? नो. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कन्वर्ट माय कंपनी फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टू एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड मतलब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई. इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नाउ? नो, नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. कैन आई टेक मनी फ्रॉम इवन 1000 पीपल? 2000 पीपल? यस. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू आई रीच टू 2000 पीपल? मुझे 5000 लोगों से फंडिंग चाहिए, मुझे 10,000 लोगों से फंडिंग चाहिए. किधर मिलेंगे? किधर मिलेंगे इज अ प्रॉब्लम नाउ. कैन आई पुट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज फॉरवर्ड? आई नीड मनी. No one will give money to my company. Even if I put it as a FB post, no one will give money to my company. So I need to channelize this funding process through a very systematic manner. तो किसको अप्रोच करूं मैं? स्टॉक एक्सचेंजेस को. इसके लिए मैं अभी टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जा रही हूं. आई एम टेकिंग ओनली वेरी बेसिक थिंग्स. सो स्टेप वाइज समझ में आ रहा है? सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ज्यादा फंडिंग लगा, वी मूव्ड ऑन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. और पैसा चाहिए, और लोगों को अंदर लाना है अपने साथ. कैन आई पोस्ट ऑन व्हाट्सएप? नो. कैन आई पोस्ट ऑन एफबी, इंस्टा? नो. इसीलिए किसको अप्रोच किया? स्टॉक मार्केट को. बोला वी वांट टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. इससे क्या होगा? विल हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस. पैन इंडिया समझते हैं? पैन इंडिया इज थ्रू आउट इंडिया. थ्रू आउट इंडिया विल हैव अ प्रेजेंस. इज दिस ओके? यस. अब ये कंपनी बन जाती है लिस्टेड कंपनी. यहां तक ओके क्या? बट जब ये जिंदगी में पहली बार लिस्ट होगी, तो ये कौन से मार्केट में अवेलेबल होती है? ये होता है प्राइमरी मार्केट. इज दिस ओके टिल हियर? यस. नाउ क्विकली टेल मी, पतंजलि के शेयर्स क्यों नहीं बाय कर सकते हो? यस, नाउ यू आर टेलिंग मी द आंसर. पतंजलि शेयर्स क्यों नहीं बाय कर सकते? बिकॉज इट इज नॉट येट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. इज दिस ओके? पतंजलि अभी भी क्या है बताती हूँ. इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? नो, इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पतंजलि इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ओह, पतंजलि इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. कैन दे कम अप विथ एन आईपीओ इफ दे वांट? कैन दे कम अप विथ एन आईपीओ इफ दे वांट? यस. कैन दे एंटर द प्राइमरी मार्केट? यस. तो है क्या प्लान?
मुझे सीक्रेट पता है क्या? वो पता है मुझे सीक्रेट, सीक्रेट नहीं है वैसे वो, इट्स देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस. पतंजलि इज एक्सपेक्टेड टू कम अप विद एन आईपीओ इन 2019. नाउ इफ यू वांट टू बाय द शेयर्स, अब बाय कर सकेंगे क्या? वंस इट इज ओपन फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, बाय कर सकेंगे नहीं? यस और नो? यस. थ्रू विच मार्केट? फर्स्ट थ्रू द प्राइमरी मार्केट. ओके, अब ये प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. दिस इज हाउ प्राइमरी मार्केट वर्क्स. ये है आपकी इश्यूअर कंपनी. इश्यूअर कंपनी के लिए लड़की का फोटो नहीं होना चाहिए, वहां पे बाबा जी का फोटो होना चाहिए था अभी अपने एग्जांपल में. ओके, सो विच इज आवर इश्यूअर कंपनी? टेल मी. हमारे एग्जांपल में पतंजलि इज द इश्यूअर कंपनी, करेक्ट. नेक्स्ट कौन है? इन्वेस्टर्स है, पीपल लाइक यू एंड मी. हम अमाउंट किसको देंगे? हम पैसा किसको भरेंगे? हमको शेयर चाहिए, हम किसको पैसा भरेंगे? टू द इश्यूअर कंपनी. सो वी विल पे मनी टू पतंजलि एंड से हमको शेयर चाहिए, हमको शेयर दे दो. पतंजलि विल इश्यू अस व्हाट? शेयर्स. बात समझ में आ रही है? ओके, इट इज नॉट दिस सिंपल. ओके, बाय द वे वी आर गोइंग टू लर्न द एंटायर प्राइमरी मार्केट प्रोसेस इन द अपकमिंग सेशंस. आज आपको सिर्फ एक बेस बता रही हूं प्राइमरी मार्केट में इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है. चलो फटाफट एक बार फिर से रिकैप करेंगे. टू मेजर पार्टीज. विच आर द टू मेजर पार्टीज? इश्यूअर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. इश्यूअर कंपनी क्या बोलता है? वी वांट टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. कौन से मार्केट के थ्रू होंगे? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट. व्हाट विल हैपन? टेल मी. इश्यूअर सेज वी वांट शेयर्स. वो बोलते पैसे पहले दे दो. फर्स्ट शेयर्स विल बी अलॉटेड और फर्स्ट मनी विल बी रिसीव्ड. ऑलवेज फर्स्ट मनी विल बी रिसीव्ड. ओके, पहले पैसा दिया जाएगा. जो दोज हु हैव लर्नड इन सीए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सब इधर आता है. ओके, दोज हु हैव नॉट लर्नड, इट्स ओके, पैसा दिया जाएगा, बात खत्म. ओके, मनी विल बी गिवन बाय इन्वेस्टर टू द इश्यूअर कंपनी. इश्यूअर कंपनी बदले में क्या देगा? शेयर्स. सिंपल एंड क्लियर टिल. ओके, अब वापस जाते हैं अपने मेन स्लाइड में. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में एज आई मेंशन्ड इट इज डायरेक्ट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इश्यूअर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. अच्छा, अब क्या हो गया? अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में पतंजलि इज नाउ लिस्टेड और नॉट. अगर प्राइमरी मार्केट के थ्रू इन्होंने दे कम अप विथ एन आईपीओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, ये हमेशा प्राइमरी मार्केट के थ्रू रूट होता है. एक बार अपने नोट्स में न्यू टर्म ऐड कर लो. प्राइमरी मार्केट डैश, इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू इश्यू मार्केट. न्यू टर्म है अपनी प्राइमरी मार्केट डैश, इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू इश्यू मार्केट. और उधर ही लिखेंगे अ कंपनी कम्स अप विथ एन आईपीओ. अ कंपनी कम्स अप विथ एन आईपीओ. आईपीओ का फुल फॉर्म लिखेंगे एक बार. क्या है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. कम्स अप विथ एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. थ्रू कौन सा मार्केट? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? थ्रू प्राइमरी मार्केट. यहां तक ओके? So one more time. Right now, today, can I buy shares of Patanjali? Yes or no? No. But if Patanjali comes up with an IPO, now can I buy shares? From whom? From directly Patanjali. यहाँ तक ओके? शेयर्स बाय किए. बाय करने के बाद प्राइमरी मार्केट में थोड़े दिन के बाद, अभी कितने दिन के बाद होता है ये सब आपको पता चलेगा. रफली 1 वीक अभी दिमाग में पकड़ के चलो. मुझे शेयर्स मिलने के 1 वीक, आजकल तो ये डेज शॉर्ट एंड शॉर्ट होते जा रहे हैं. तो द मोमेंट आई गेट दो शेयर्स, कहाँ पे मिलते समझ में आया ना? ये वाला अपना जो था, मैंने पैसा दिया पतंजलि को एंड मुझे शेयर्स मिल गए. आफ्टर रिसीविंग दी शेयर्स विद इन 3 वर्किंग डेज, ध्यान से सुनो, एक बार मुझे शेयर मिल गए, शेयर मिलने के विद इन 3 वर्किंग डेज द शेयर्स विल गेट लिस्टेड. कहां पे लिस्ट हो जाता है बोलो? ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. दो नाम सुने आपने? कौन से 2 नाम सुने आपने स्टॉक एक्सचेंज के? BSE एंड NSE. BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किधर लोकेटेड है? बोली कुछ भी पूछ रहे हो मैम आप. बॉम्बे स्टॉक नाम में लिखा है ना, तो बॉम्बे ऑब्वियसली. व्हाट अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल है ना, है कि नहीं?
वो भी बॉम्बे में ही है. Okay, there is a fantastic misconception amongst almost all the newcomers that national मतलब दिल्ली में ही होना चाहिए. It's not so. BSc, NSC दोनों भी मुंबई में ही located है physically. Okay. If you want to buy shares, do you have to physically go to BSc? नहीं, ये पूरा electronically आजकल हो जाता है. Okay. So coming back to our discussion, whenever we talk about any company coming up with an IPO, IPO के टाइम पे तो ये लिस्ट हो जाएगा, बट once it gets listed on the stock exchange, अब क्या होता है बोलो? Now the moment it is on BSE, the moment it is on NSE, now we call it as a secondary market. अब ध्यान से एकदम अच्छे से देखना है. प्राइमरी मार्केट का बहुत डिटेल में बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट टुडे ऑफ प्राइमरी मार्केट. पतंजलि assume comes up with an IPO in June 2019. एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना एकदम. पतंजलि comes up example in June 2019 IPO. अब ये क्या बोलती है? We will keep our issue open from 12th of June to 14th of June. We'll keep our issue open from 12th of June to 14th of June. मतलब क्या होता है? If people like you and me want to invest in Patanjali, what will be the dates between which we have to give that amount? 12, 13, 14, 3 दिन है अपने पास. इन 3 दिनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? इन 3 दिनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to give the amount to the issuer company कि मुझे शेयर्स दे दो. यहाँ तक ओके? पक्का? 3 दिन खत्म होने के बाद उसके आगे रफली 3-4 दिन और चले जाते हैं इन द एडमिन प्रोसेस. किधर होता है एडमिन प्रोसेस? एट पतंजलि. कि कितने लोगों से पैसा आया, कितना आया, क्या आया, ज्यादा आया, कम आया. They'll need some time to process the data, right? उसके 3-4 दिन के बाद क्या होगा बोलो? उनका पूरा डेटा प्रोसेस हो गया. अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप इज शेयर्स विल बी अलॉटेड. फ्लो समझ में आ रहा है? पक्का? वन लास्ट टाइम, पतंजलि का इशू ओपन डेट क्या था? 12th जून टू 14 जून. दिस इज एन एग्जांपल. ओके, 12 जून टू 14 जून. सो हम इसी पीरियड में किसको पैसे देते हैं? टू पतंजलि. 3-4 days दे टेक एज एडमिन वर्क. उसके बाद क्या करेंगे? वो शेयर्स अलॉट करेंगे. यही प्रोसेस आपका बीएससी के थ्रू हुआ है क्या? एनएससी के थ्रू हुआ है क्या? नहीं. दिस इज द प्राइमरी मार्केट थ्रू विच यू हैव गॉट शेयर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज बीएससी इन्वॉल्व हियर राइट नाउ? नो. एनएससी इज इन्वॉल्व हियर और नॉट? नो. इट्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन whom and whom? Issuer and the investor. This is your primary market. No BSC, no NSC in between. It's directly issuer, directly the investor. This is the primary market. यहां तक बात समझ में आ गई? Yes. Assume after 3-4 days मुझे 100 शेयर्स अलॉट हो जाते हैं. यहां तक ओके? कितने शेयर्स अलॉट हो गए? 100 शेयर्स. अलॉट होने के 2-3 दिन के बाद, लेट अस से 3 days, अलॉट होने के 3 दिन के बाद दिस शेयर नाउ लिस्ट्स ऑन BSE एंड NSE. यहां तक ओके? अब मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं. मैंने कहा बहुत हो गया, मेरे को नहीं चाहिए इतने शेयर्स अभी. आई वांट टू सेल इट ऑफ. कैन आई से देखो कंपनी, मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने मुझको शेयर दिए, अब मैं तुमको शेयर दूंगी, तुम मुझको पैसे दे दो. Can I sell it back to the company? Can I sell the shares back to the company after listing? No, this is not allowed. तो क्या करूं मैं? अब देखो क्या होता है. शेयर्स, एक इन्वेस्टर है, दूसरा भी इन्वेस्टर ही है. ओरिजिनल इसमें यहां पे कौन था? कंपनी था. यहां पे कौन था? इन्वेस्टर था. तो प्राइमरी मार्केट में इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन whom and whom? इश्योर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. सेकेंडरी मार्केट में मतलब बीएससी एनएससी पे इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन इन्वेस्टर एंड द अदर इन्वेस्टर. क्या तक ओके? यस. अब क्या होगा बोलो? ये मान के चलो इसको शेयर्स बेचेगी, ये इसको अमाउंट दे देगा, बात खत्म. ओके, बट दिस एंटायर ट्रांजैक्शन हैपेंस इन व्हाट? बहुत क्लियरली लिखा मैंने, हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट. एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब ही कहां पे होता है? ये बीएससी पे, एनएससी पे. इन सिंपल वर्ड्स आपको समझ में आया होगा. बीएससी एंड एनएससी एकदम लेमैन लैंग्वेज में इट्स नथिंग बट अ दुकान. जहां पे आप शेयर बाय कर सकते हो, जहां पे आप शेयर्स बेच सकते हो, वो दुकान इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दो अलग अलग दुकान है.
आपको जिस दुकान में जाके शेयर बाय करना है करो, आपकी मर्जी है. इज दिस अंडरस्टूड नाउ? यस. सो ये मैं आपको जो ओरिजिनली मैंने आपको वो बॉलीवुड का एग्जांपल जो बताया था, स्टारिंग नहीं, कौन सा, इंट्रोड्यूसिंग. इंट्रोड्यूसिंग इज व्हाट? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट. पहली बार ये स्टार सिनेमाज में आ रहा है, बट एक बार उसका पिक्चर रिलीज हो गया तो इंट्रोड्यूसिंग नहीं बोलते, फिर क्या बोलते? स्टारिंग बोलते. स्टारिंग जब आ जाता है इट्स लाइक अ प्राइमरी मार्केट नहीं है ना, नाउ इट्स लाइक अ सेकेंडरी मार्केट. इज दिस ओके? क्विकली टेल मी एन आंसर. आज अगर आपको इन्फोसिस के शेयर्स बाय करने, करेक्ट आंसर चाहिए. आज अगर आपको शेयर्स बाय करने इन्फोसिस के, कैन यू गो टू द कंपनी एंड से शेयर्स चाहिए? यू कांट बाय इट थ्रू विच मार्केट? You can't buy it through primary market. You will have to buy it through secondary market. एकदम ओके? पक्का? हमने अभी नोट डाउन क्या किया था? प्राइमरी मार्केट किया था ना, IPO. Have you written that IPO में transaction is directly between whom and whom? Have you written that? Okay. ये एक सिर्फ सेंटेंस एड अप करना, that in a primary market transaction is directly between issuer company and investor. Yesterday I had given one more example of DMart, if you remember. याद है DMart का एग्जांपल लिया था? Today if you want to buy shares of DMart, can you go to the company? कहां से बाय करना पड़ेगा? दुकान से. कौन सा दुकान? सेकेंडरी मार्केट. कौन सी दुकान है? अपने दो सेकेंडरी मार्केट के वेरी फेमस, BSE, NSE. Okay? Yes. So with that you can write down secondary market. Secondary market. Next term. अच्छा, in simple words जो हम बोलते हैं ना, बेसिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. आप ध्यान से एक मिनट, अपन जो बोलते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अपने बैच का नाम है ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज. तो प्राइमरी मार्केट के बारे में ज्यादा बात चल रही है, सेकेंडरी मार्केट के? सेकेंडरी मार्केट के बारे में ज्यादा बात चल रही है. Okay, so we are going to focus more on secondary markets, but primary market के ऊपर एक दिन का सेशन पक्का लूंगी, so that you also understand how to apply for IPO. Okay, so secondary market के लिए आप लिख सकते हैं also known as stock exchange. Also known as stock exchange. Two very famous stock exchanges. Two famous stock exchanges, BSE, NSE. Two famous stock exchanges, BSE, NSE. अच्छा, यहां पे फटाफट, ट्रांजैक्शन इज बिटवीन whom and whom? Between two or more investors. So basically between an investor and the other. Transaction is between an investor and the other investor. Transaction is between an investor and the other. अच्छा, नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ BSE एंड NSE. ये भी लिख लो फटाफट. नेक्स्ट टर्म BSE, NSE. What will you write for BSE full form? Bombay Stock Exchange. NSE, National Stock Exchange. And one important point, both are located in Mumbai. Both are located in Mumbai. And एकदम simple layman language में क्या बोला? Is it like a shop? Like a shop? Yes. From where we can buy or sell shares. Okay. यहाँ तक भी ओके? कैन वी मूव ऑन नाउ? यस. चलो, बेसिक नॉलेज तो आ गया. अभी आपको ऐसे लग रहा है यार प्राइमरी मार्केट से तो छूट गया अपना अपॉर्चुनिटी अभी तक. लेट्स गो एंड बाय सम शेयर्स राइट नाउ. अभी आज अपना लेक्चर होने के बाद तुरंत जाके अपन शेयर्स बाय करके आते हैं. अभी मैडम ने तो पता भी बता दिया है, मुंबई में है. भागो यहाँ से, जाओ मुंबई, बाय सम शेयर्स एंड कम बैक. ऐसे चाहिए क्या? नहीं. डू यू नीड टू फिजिकली गो टू BSE? नो. फिजिकली यू नीड नॉट गो टू ईदर BSE और NSE. सो आप घर बैठे बैठे शेयर्स बाय कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड सम अकाउंट. यू नीड समथिंग. क्या चाहिए आपके पास? डिमैट अकाउंट चाहिए और बैंक अकाउंट. बोले सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए. ओके, सो यू नीड अ डिमैट अकाउंट, यू नीड अ बैंक अकाउंट. व्हाट एल्स? ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी गुड. तो देखो, तीन मेजर अकाउंट्स ये होते हैं.
डीमैट अकाउंट एक होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एंड एक होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट. ओके, डीमैट तो नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर अबाउट इट. सेविंग बैंक अकाउंट ऑल्सो एवरीवन नोस. ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज है? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. उसका एंड इसका कुछ संबंध नहीं है. व्हाट इज दिस ट्रेडिंग अकाउंट? एनीवन नोस? तो कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? 4-5 ना. हाँ, एंड ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, यू वांट टू टेल द आंसर फॉर ट्रेडिंग अकाउंट? Account in BSc and NSC through which we can buy. BSc NSC के साथ लिंक मत करना, that is it. हाँ, so it is an account. It is an account through which we can trade. In simple words, what is a trading account? An account through which you can trade. Trade मतलब है क्या? Either buy or sell. पहले समझ लो, then I'll dictate. Okay, trading account is an account through which you can trade, means you can buy or sell. चलो मैंने buy किए shares. Now I have demat shares. Where will I keep it? In the demat account. Oh, wait. Like when you get money, where do you keep your money? You keep your money in the bank account. Can you keep shares in your bank account? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, बोलेंगे ना बैंक को, थोड़ा एडजस्ट करो, पैसे के साथ 2-4 शेयर रख लो ना. चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. You can't keep shares in your bank account. You'll have to store your shares in a demat account. एकदम थोड़ा सा शायरी के स्टाइल में, रास्ता और मंजिल के स्टाइल में बताती हूँ अभी. ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रास्ता है. डीमैट अकाउंट क्या है? मंजिल है. वाह वाह बोलो, वाह वाह. ओके, राइट. सो क्विकली टेल मी, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट वन मोर टाइम? एन अकाउंट थ्रू विच यू कैन ट्रेड, थ्रू विच यू कैन बाय और सेल. इट्स लाइक अ रास्ता. whenever you buy, where do you keep it? In the manzil. And what is that? Demat account. Is this okay? Yes. पुराना डीमैट अकाउंट क्या होता था? दादाजी परदादाजी के टाइम पे कबर्ड. एग्जैक्टली. अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कबर्ड, विच इज योर डीमैट अकाउंट. पक्का क्लियर है? सेविंग बैंक अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है. अब आपको एक और चीज बताती हूँ. These days what banks do, banks say we'll give you a 3-in-1 account. You go to any bank, and especially right now we are towards March end. अब अगर आपको बहुत मतलब टाइम पास करना है अगर, तो this is the best time to go to any bank, because all these employees are given some targets. ये बेचो वो बेचो, आपके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे. फिर आप ये भी चाय कॉफी सब मंगा सकते हो आप फ्री में, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ेगा उधर. Okay, they'll tell you all about this 3-in-1 facility. 3-in-1 में क्या होगा? 3-in-1 क्या रहेगा आपके हिसाब से? एक ही अकाउंट, मतलब एक ही बैंक बेसिकली ऑफर्स यू ऑल दीज 3 फैसिलिटीज. सो जस्ट एज एन एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक में आप जाते हो. आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलता है? हम ही आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के देंगे, हम ही आपका डीमैट अकाउंट बनवा के देंगे, हम ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनवा के देंगे. क्विक आंसर आई वांट. इज अ बैंक अलाउड टू एक्ट एज अ ब्रोकर? Is a bank allowed to act as a broker without any permissions? Any bank is not allowed to act as a broker. आपको अलग से permissions लेने पड़ते हैं उसके. Okay, so if you have heard about this, ICICI तो बैंक है, but if you are talking about the broking arm, it is ICICI Securities. HDFC तो बैंक है, but then you will have HDFC Securities, which is the broker. But दोनों भी अपने ही है ना, so खोलते वक्त 3-in-1 अकाउंट खोल के देंगे. So they'll be at a big benefit. समझ में आ रही है बात? Yes. But is it mandatory that we open it like this only? Not mandatory at all. So if you want to know about me, I have my bank account with ICICI Bank, but I don't have an account with ICICI Securities. Why? It's very expensive. ICICI Securities is one of the most expensive brokers in town. तो मैंने बोला सस्ता अच्छा लगता है ना अपने को. कल ही अपन ने बात की थी इंडियन मेंटालिटी. सो मैंने क्या बोला, सस्ता ब्रोकर कौन सा है देखो. दिस डेज जीरोधा इज ऑन अ रोल ऑब्वियसली, बट इवन सो आई हैव माय ब्रोकर इज Edelweiss Limited. Okay, so could this be possible that I have bank account with one bank and I have a demat plus trading with a different broker? Allowed or not allowed? Demat plus broker allowed. Okay, बात समझ में आ रही है? Okay,
और भी डेंजर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. लाइक माय हस्बैंड ओरिजिनली व्हेन ही ओपनड हिज स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट, आई मीन बेसिकली डीमैट अकाउंट, तो आपने नाम सुना अगर होगा जनता सहकारी बैंक. ओके, ही ओपनड हिज डीमैट अकाउंट विद जनता सहकारी बैंक. फिर उसका कोई एक दोस्त है, बोला मैंने ना ब्रोकिंग का एक लाइसेंस लिया है, शेयर ब्रोकर का मैंने लाइसेंस लिया है, मेरे पास डीमैट अकाउंट खोलना. तो यूज द फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स. SS प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ब्रोकर है. ओके, इसके पास इसने क्या ओपन किया? ट्रेडिंग अकाउंट. कॉम्बिनेशंस बता रही हूं आपको. दिस इज ऑल्सो अलाउड. इसके पास क्या ओपन किया? ट्रेडिंग अकाउंट. उसका बैंकर कौन है? बैंकर कोई तीसरा भी हो सकता है. बैंकर इज एक्सिस बैंक. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशंस. दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 1. डीमैट एक जगह पे, ट्रेडिंग दूसरी जगह पे, सेविंग बैंक अकाउंट और ही तीसरी जगह पे. चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. कुड यू हैव अ 3-in-1 डीमैट अकाउंट? 3-in-1 अकाउंट बेसिकली, जिसमें क्या होगा? ऑल एट वन प्लेस. कौन से ऑल एट वन प्लेस? डीमैट, ट्रेडिंग, सेविंग बैंक, ऑल एट वन प्लेस. तीसरा वाला मेरा कॉम्बिनेशन, मेरा वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? बैंक एक है आईसीआईसीआई में, एंड डीमैट प्लस ट्रेडिंग इज विद द ब्रोकर Edelweiss. All 3 combinations are allowed. Many people feel कि जिधर डीमैट है उधर ही ट्रेडिंग करना पड़ता है. Okay, but I'll tell you one biggest drawback of this, after which we changed it. Biggest drawback क्या है? देखो ध्यान से सुनो. मुझे अगर यहां से ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है मतलब मेनली मुझे क्या करना है? बोलो फटाफट. बाय सेल करना है. ओके, अज्यूम मुझे कोई शेयर सेल करना है. अच्छा, लाइफ में अगर मेरे पास एक ही कंपनी के शेयर है तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मेरे पास इस कंपनी के 2 शेयर्स है. नाउ नो नीड टू रेफर कि मेरे पास कौन से कंपनी के कितने शेयर्स है. ओके, बट 10 years आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुनने के क्या अच्छा लगता है, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 years आफ्टर दैट, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बाय ओनली 1 share, 2 shares, और यू आर गोइंग टू बाय मल्टीपल शेयर्स एंड ऑफ डिफरेंट कंपनीज. अब एक बार मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे हुआ, ही वॉज गोइंग टू सेल सम शेयर, बट ही वॉज नॉट श्योर कि इस कंपनी के मेरे पास 35 शेयर्स है या 40 शेयर्स है. ही जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड. सो पुराने तरीके से क्या करना पड़ता था, एकदम पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर स्टाइल. मेरे पास 35 शेयर है कि 40 शेयर है, कबर्ड ओपन करो, देखो कितने शेयर है. अच्छा 35 है, आई कैन सेल 35 शेयर्स. सिंपल. अब क्या करना पड़ेगा? अब डीमैट में चेक करना पड़ेगा. बट यू कैन इमेजिन दिस अमेजिंग बैंक डिड नॉट गिव ई सपोर्ट. तो बैंक में जाओ, पूछ के आओ मेरे पास कितने शेयर्स है, तब तक वो प्राइस चला गया. ओके, कैन दैट बी अ बिग डिजास्टर? यस. सो आई नेवर रेकमेंड दिस. सो दैट डे ओनली वी डिसाइडेड लेट्स हैव अ सेपरेट डीमैट अकाउंट, जिसमें आपका ये एटलीस्ट आई सजेस्ट योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी विथ 1 person. सो यू शुड बी इमीडिएटली एबल टू चेक कि मेरे पास कितने शेयर कौन से कंपनी के हैं, एंड यू कैन इमीडिएटली सेल ऑफ इफ यू वांट. इज दिस ओके? यस. One very basic question, can you have 2 or more डीमैट अकाउंट्स? एक ही इंसान क्या 2 या ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है क्या? यस. आपके पास कितने भी कबर्ड्स हो सकते हैं ना. यू कैन ओपन 2 or more डीमैट अकाउंट्स. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इज दिस ऑल्सो फाइन? यस. सो 2-3 कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़े. कौन से 2-3 कंसेप्ट? वेरी इंपॉर्टेंट वंस. डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो यू कैन राइट दिस एज अ सोलो कंसेप्ट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. Demat and trading account. What will you write in Demat account? Tell me. It is an account which is used to क्या trade or store shares? Store shares. It is an account which is used to store shares. And second one, it is so trading के लिए क्या लिखेंगे? It is an account through which क्या you will trade into bracket buy
through which you will buy/sell shares. राइट? आया समझ में? थोड़ा सा theoretical फटाफट खत्म कर लेंगे इसको. What are the documents which are required if you were to open your Demat account? क्या क्या लगता है? देखो बहुत सिंपल चीज है. जैसे पैन कार्ड. Everyone has their PAN card? Yes. You need an address proof. For address proof, you can have Aadhaar card, driving license, passport. Okay. Personalized check, duly cancelled and signed. You understand what's a personalized check? क्या होता है personalized check? Personal bank account का होता है. मतलब क्या? तो दूसरी का बैंक अकाउंट का था थोड़ी ना मेरे पास चेक रहेगा. सेविंग, अब सेविंग का ही चल रहा है. हाँ, खुद का मेरा ही है चेकबुक मेरे पास. With the name on it. So जैसे आपका चेक, you can imagine, जहाँ पे आपका चेक होता है, यहाँ पे you have a space to sign, and अगर उधर मेरा नाम लिखा रहेगा, that's a personalized check. Okay, अगर आपके पास ऐसे personalized checkbook नहीं है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट लगता है फिर. At least 6 months bank statement these people will ask to open a Demat account and a passport size photograph. Normal documents required है. Okay. अच्छा चलो, डॉक्यूमेंट्स तो समझ में आ गए. एक बार अगर आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, मान के चलो आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट सब कुछ खुल गया. वंस यू ओपन योर अकाउंट, नाउ यू वांट टू बाय और सेल सम शेयर. प्राइमरी शेयर, सम फर्स्ट शेयर. इफ यू से कोई रिनाउंड कंपनी का लेते हैं, जैसे कल मैंने आपको बोला था, एसबीआई में आप फिक्स डिपॉजिट तो रखते हो, तब डर नहीं लगता है एसबीआई बंद हो जाएगी, तो व्हाई नॉट बाय shares of SBI instead of keeping a FD with SBI. So मान के चलो first transaction you do is of SBI shares. और दो चार companies जो आपको पता है, tell me some 2-3 companies you know. At least everyone has to tell me one company that you know is listed on the stock exchange. TCS, Tata Consultancy Services, listed on the stock exchange. MRF, कल ही हमने बोला था. Yes Bank, right now it's no bank. इतना वो खराब हो गया. Infosys, Tata Motors, L&T, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, अदानी पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं, पोर्ट्स, हाँ, एडोर वेल्डिंग. अरे बाप रे, तो एकदम मतलब खजाने से चुन के लाया इसने. एंड वन मोर, ब्रिटानिया. ओके चलो. सो मान के चलो आपने कोई शेयर बाई भी किया. नाउ यू आर नॉट श्योर कि मैंने जो बाई किया वो सही में आया कि नहीं आया, कितने रुपीज में आया, क्या आया. Do you think broker should give you some proof कि आपने बाय किया है? Do you think broker should give you some proof कि आपने कोई शेयर्स बाय किया है? 100% yes. इसी प्रूफ को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको एकदम, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है आधे लोग देखते भी नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. वेन एवर यू बाय और सेल एनी शेयर्स, broker has to give you a receipt. Na? That receipt is known as what? Contract note. New term. First write down the meaning, then I'll show you a contract note. तो एकदम फिट बैठ जाएगा दिमाग में. Okay. Write down contract note dash. It is like a receipt. It is like a receipt issued by whom? Broker. Issued by the broker to con? Issued by the broker to whom? To the investor, which gives various details. अच्छा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझ लो. आई शो यू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. बट पहले क्या होता था देखो, आज भी होता है. वाई पहले? देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स हु वुड बिंदास बाय शेयर्स, सेल शेयर्स फ्रॉम योर अकाउंट. लीगली और इलीगली चल रहा है. इलीगली बोल रही हूँ मैं, बिंदास. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इतना बड़ा जो फॉर्म रहता है अकाउंट ओपनिंग का, हर जगह पे तो साइन लेके रखा है. आपने देखे होंगे ना ऐसे फॉर्म जिसमें आप 50-50 साइंस करते हो. एंडेड में अपनी साइन अपने से मैच नहीं होती है, इतने साइन आप मारते हो उस फॉर्म पे. एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल एक्चुअली रीड वेयर दे आर साइनिंग. ब्रोकर बोलता है इधर साइन करो, आपने उधर साइन किया.
और उसमें एक साइन वो ऐसे भी ले सकते हैं दैट यू आर अलाउड टू ट्रांजैक्ट ऑन माई बिहाफ. ब्रोकर ऐसे साइन ले सकता है, यू आर अलाउड टू ट्रांजैक्ट ऑन माई बिहाफ. अब तो ये लीगली ट्रेड कर रहा है आपके अकाउंट से. ओके, मेरे पास ऐसे एक केस आया था. वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम रत्नागिरी एरिया इन महाराष्ट्र, एंड वो आई थी मेरे पास, छोटी सी शक्ल बना के. मैंने कहा क्या हो गया? शी सेड हर मदर इन लॉ, उनको उनके दादाजी से कोई शेयर्स गिफ्ट मिले थे. सो कैन इमेजिन कितने सस्ते प्राइस में वो शेयर्स गिफ्ट मिले रहेंगे. अब ब्रोकर ने क्या किया? ब्रोकर ने, इन्होंने डिमैट अकाउंट खुलवाया था. शी सेड शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट. उन्होंने डिमैट अकाउंट खुलवाया था, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था. ब्रोकर ने एज यूजुअल बहुत ज्यादा ढेर सारे साइंस लेके रखे थे. व्हाट ब्रोकर डिड वाज बाय सेल बाय सेल बाय सेल. अच्छा, what happens if broker is doing buy sell? What is the advantage to the broker? Time pass होता है उसका? नहीं. Commission, that commission is known as brokerage. Technical term is brokerage. Brokerage generate होता है. So can I say broker is becoming rich? Yes. अब हर बार ऐसे होगा क्या? Assume he sells some shares from the demat account at 100 rupees. हर बार will he be able to buy it back at a price lower than that? तो कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है. ऐसे कर करके इन्होंने कितने ज्यादा शेयर्स, उनका खाली ऑलमोस्ट लेस देन हाफ कर दिया था उनका डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो पहले बहुत ट्रेड किया. बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना भी पैसा उधर आ जाता है, कैन ब्रोकर टेक दैट मनी और अमाउंट विल गो टू दैट लेडी ओनली. अमाउंट विल गो टू द लेडी, अग्रीड. बट क्या उनका नुकसान भी हो रहा है क्या? कभी शेयर 100 में बाय किया, 90 में सेल कर दिया, कितना रुपीस का नुकसान हो गया? एक बार फिर से 100 में बाय किया, 90 में सेल कर दिया, कितने रुपीस का नुकसान हो गया? 10 रुपीस. इज द ब्रोकर बॉदर्ड? व्हाट डज ही गेट? ब्रोकरेज. ऐसे कर करके उसने उसका पूरा डीमैट अकाउंट लेस देन हाफ कर दिया था. एंड देन शी हैड कम टू मी आस्किंग कि मैडम इसका कुछ हो सकता है क्या? आई सेड दिस इज सो लेट नाउ. एंड ये होके 2-3 साल हो गए थे, उनको तब पता चला था. वो बोली मैडम हमको कुछ, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए था ना कि देखो हमने आपके बिहाफ पे इतना ट्रेड किया है. कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट नोट. फ्रेंड्स, इट इज मैंडेटरी दैट एवरी ब्रोकर इश्यूज, डिस्पैचेस अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट टाइम. जब भी अपने शेयर्स बाय सेल किए, विद इन 24 आवर्स. किसने बोला? ये करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है. सेबी. यू हैव हर्ड अबाउट दिस? सेबी. इट्स लाइक, एकदम फालतू कंपैरिजन कर रही हूं, जैसे सिविल केसेस में पुलिस होता है, वैसे इधर का पुलिस कौन है? सेबी है. इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रेगुलेटर. सो सेबी बेसिकली इज लाइक एन इंस्पेक्टर. सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना? हु इज डूइंग दैट? सेबी. सेबी ने बोला विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. क्वेश्चन इज कहां पे? पोस्टल एड्रेस पे 24 घंटे में आएगा क्या? ऑन ईमेल. So what is your duty as a very जागरूक इन्वेस्टर? क्या ड्यूटी आपकी? रजिस्टर योर ईमेल आईडी विद द ब्रोकर, रजिस्टर योर ईमेल आईडी विद द स्टॉक एक्सचेंजेस. जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा कहां से? नंबर 1. कोई बोलता है फिर मैडम हम रोज ईमेल चेक ही नहीं करते. नो प्रॉब्लम, यू हैव अ फैसिलिटी टू नाउ रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द ब्रोकर. You can register your mobile number with the exchange. And अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो इट इज मैंडेटरी दैट द ब्रोकर सेंड्स यू एन SMS कि आपका इतना इतना आज वैल्यू, कितना शेयर बाय किया, कितना शेयर सेल किया, इसका वैल्यू इतना इतना है आज का. एवरी डे यू विल गेट एन SMS इफ यू ट्रेड एवरी डे. कैन आई से दिस इज वेरी गुड नाउ? अब कोई चीटिंग हो सकता है क्या? इनका ना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था ना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया. सो दोज हु आर ट्रेडिंग, those who are dealing in stock markets, please ensure that your account is properly updated with your email ID and your mobile number both. आपको कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर आनी ही चाहिए. देयर इज नो ऑप्शन विद द ब्रोकर. यहां तक भी ओके? पक्का? कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख लिया आपने? मीनिंग लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट नोट का? यस. यू वांट टू सी अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? देखो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट. आई शो यू इन डिटेल. सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? अच्छा, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर ईडलवाइज. ओके, मैं आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा रही हूँ.
ओके, Edelweiss इज माय ब्रोकर, तो ब्रोकर का नाम इधर आ गया. ओके, ये एड्रेस एंड नेम ऑफ द पर्सन आ गया. मयूर प्लीज ब्लर दिस आउट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो ये आ गया आपका एड्रेस ऑफ कौन, इन्वेस्टर. राइट, अब आपको यहाँ पे एकदम सेंटर में क्या आ गया बोलो, कैन यू सी दिस, कॉन्ट्रैक्ट नोट कम इनवॉइस. सो इट्स लाइक एन इनवॉइस. अभी मैंने बोला था ना, इट्स लाइक अ रिसीट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इट्स लाइक एन इनवॉइस. ओके, अब यहाँ पे और भी ढेर सारी बातें लिखे. लाइक व्हाट, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर. यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन दिस लेक्चर. ओके, सो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है. अगर आप मेरे अकाउंट से ट्रेड करोगे बिंदास, कुछ भी हो जाए, पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं. राइट, दिस इज माई पैन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर. कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर. सो जैसे आप कोई भी दुकान में जाते हैं, आपको इनवॉइस आता है, इनवॉइस नंबर यूनिक रहता है कि नहीं रहता है, इनवॉइस नंबर यूनिक रहता है ना, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर यूनिक रहेगा. इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कैन आई गो टू द एक्सचेंज एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में गड़बड़ है, कैन आई गिव अ यूनिक रेफरेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट. यस. ओके, ट्रेड डेट, कब ट्रेड किया मैंने, एकदम ताजा ताजा दिखा रही हूं आपको, 8 फरवरी 2019 फ्राइडे को जो ट्रेड किया है उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है. ओके, नाउ इफ यू सी सेटलमेंट नंबर करके आता है, सेटलमेंट का कंसेप्ट अभी नहीं कर रहे, बट सेटलमेंट डेट आ रहा है 12/2/2019. चला टेल यू दिस कॉन्सेप्ट. बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है ये, ध्यान से देखो क्या लिखा है. ट्रेड डेट इज 8/2, मतलब 8 फरवरी, एंड सेटलमेंट डेट क्या लिखा है, 12 फरवरी. मतलब क्या. सो वी कम अक्रॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बहुत लोगों को क्या लगता है, मैंने आज शेयर्स बाय किया. बाय द वे, मैंने, अगर आपने देखा तो यहां पे मैंने बाय किए कुछ शेयर्स. ओके, 2 शेयर्स, 2 कंपनीज आई हैव बॉट. ओके, 2 कंपनीज कौन सी है, L&T, एंड सेकंड वन इज M&M. महिंद्रा एंड महिंद्रा. हाँ, तुमको क्या लगा, M&M मोसिंगर. हाँ, M&M इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. ओके, ये दोनों भी क्या किया मैंने, बाय. नाउ टेल मी क्विकली, मैंने कितने तारीख को बाय किया है, 8 फरवरी. इमीडिएटली विल आई गेट द शेयर्स, नो. वो जादू नहीं कि मैंने बाय किया आज ही मेरे डिमैट अकाउंट में आ गए. So for that we come across a very amazing concept and that is known as the settlement date. And India में फिलहाल चलता है आपका T+2 settlement. ये आपको टर्म पता होना चाहिए. क्या होता है T+2 settlement? T means what? ट्रेड डेट. जिस दिन आपने ट्रेड किया वो ट्रेड डेट के आगे कितने दिन लगेंगे, 2 days लगेंगे till shares get credited to your demat account. Is this okay? मैंने कौन सी तारीख को ट्रेड डेट किया था, 8 फरवरी. सो आइडियली टेल मी कितना होना चाहिए, 10 फरवरी होना चाहिए, है ना. बट कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा था रे, 12 फरवरी दिख रहा था. मैडम गलत पढ़ा रही है, T+4 है ये तो. नहीं, रुको, सैटरडे संडे, इट्स T+2 वर्किंग डेज. मोमेंट यू हैव. सो ये कौन सा डेट था, मैंने आपको पहले ही बोला ना, इट वाज अ फ्राइडे. सो क्या होगा बोलो, फ्राइडे का टी डेट आ गया. फिर ये दोनों दिन छुट्टी आ गया, एंड T+1 T+2, आज 12 तारीख है. आज मेरे अकाउंट में L&T के एंड M&M के शेयर्स जमा हो जाएंगे. इज दिस ओके? सो व्हाट इज T+2? टेल मी. T+2 मीन्स ट्रेड डेट +2 वर्किंग डेज. यहां तक ओके? अच्छा, मेरे अकाउंट में तो T+2 के बाद शेयर्स आएंगे, अग्रीड. बट प्लीज टेल मी, करेक्ट आंसर चाहिए. मैंने L&T के शेयर्स बाय किए, किससे, कंपनी से, फ्रॉम सम अदर इन्वेस्टर. उसको पैसा मिलना चाहिए. कब मिलेगा, 8 फरवरी को. फॉर हिम ऑल्सो T+2 सेटलमेंट. सो फॉर हिम व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड. उसने कब शेयर्स बेचे, 8 तारीख को. उसको पैसे कब मिलेंगे, 12 तारीख को. सो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि आज मुझे पैसों की जरूरत है, आज मैंने शेयर्स बेच दिए, मुझे पैसा मिल गया. पैसा मिलने के टाइम पे भी कौन सा सेटलमेंट वर्क करता है, T+2 सेटलमेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट इट डाउन, T+2 सेटलमेंट. T+2 settlement. It is a system where the transaction is settled
It is a system where the transaction is settled after how many days? After transaction is settled after 2 working days. Transaction is settled after 2 working days. From कौन सी date? From the trade date. यहाँ तक ओके? पक्का? वेरी गुड. चलो ओके. सो नाउ कमिंग टू द माइनर पार्ट. देखो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो. ये हो गया आपका हेडर ऑफ द नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें ये मेरा डिटेल्स, बायर का डिटेल्स या सेलर का, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर का डिटेल्स यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स कौन कौन सा आ गया कि आपका पैन नंबर क्या है. पैन नंबर बोलना गलत है. व्हाट इज योर पैन? बिकॉज एन स्टैंड्स फॉर नंबर ना. इट्स लाइक एफसी कॉलेज. ओके. सो पैन है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है, then your trade date, settlement date, all these basic details came up here. But now if you want to check कि exactly buy किया, sell किया, कितना किया, कब किया, देखो कितना डिटेल में ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है. ऑर्डर नंबर आ गया, ऑर्डर टाइम आ गया, ट्रेड टाइम आ गया. सो ऑर्डर टाइम मतलब क्या? द टाइम विच आई प्लेस्ड माई ऑर्डर इन द सिस्टम. अब मैंने आपको पहले बोला है, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्या बीएससी में जाना पड़ेगा? नहीं, मैं डायरेक्टली कहां से बाय या सेल कर सकती हूँ? कैन आई बाय और सेल थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द ब्रोकर्स वेबसाइट? यस. और दीज डेज मेनी ब्रोकर्स ऑल्सो गिव यू मोबाइल एप्स. मैं डायरेक्टली, कितनी बार ऐसे होता है, मतलब ऐसे एक ही बार किया है मैंने, बट एमबीए के कॉलेजेस में वेर आई टीच न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, आई ऑल्सो टीच एमबीए पीपल. तो उस दिन मैं उनको अकाउंटेंसी सिखा रही थी. मैंने अकाउंटेंसी के लिए उनको बोला ये बैलेंस शीट को बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व करो. उनको सॉल्व करने के लिए दिया. मेरे पास टाइम है, तब मैं क्या कर रही हूँ? बाय सेल थ्रू माई मोबाइल ऐप. दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. ओके, सीए में नहीं चल सकता है. ओके, बट एमबीए के लिए चल जाएगा. सो नाउ व्हाट आई डू, टेल मी. मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया. कब प्लेस किया? 2:03:40. ये मेरा ऑर्डर टाइम है. चेक व्हाट इज द ट्रेड टाइम. सेम. कैन यू इमेजिन द स्पीड एट विच माई ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड? खतरनाक स्पीड है. मैंने ऑर्डर डाला, सेम सेकंड एग्जीक्यूट हो गया. दिस इज अमेजिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी? ऐसे भी नहीं हुआ कि मैंने अभी डाला एंड अगले सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया. दिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट इट सेज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि हम 1 माइक्रो सेकंड में 6 ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं. इतना हमारा स्पीड है. 1 माइक्रो सेकंड में मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ अ सेकंड. 100th ऑफ अ सेकंड में वो कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लेंगे? 6 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लेंगे. सो 1 सेकंड में 600 ऑर्डर्स दे कैन एग्जीक्यूट. दैट इज देयर टेक्नोलॉजी स्पीड. अमेजिंग. सेम हैपेंड विद द सेकंड वन, M&M, ऑर्डर टाइम एंड ट्रेड टाइम. अगर आप देखेंगे सेकंड्स के साथ भी सेम है ना, सेकंड में भी चेंज नहीं है. चलो, अपने को एज एन इन्वेस्टर क्या इंपॉर्टेंट है? देखो आपने क्या किया है. आपने LNT के शेयर्स बाय किए. ओके, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया. क्वांटिटी के बाद आता है, सो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, आपने किया क्या है? आपने बाय किया है. बाय क्या किया है? कौन से शेयर्स बाय किए? LNT के शेयर्स बाय किए. M&M मतलब कौन सा था? महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स बाय किए. कितने क्वांटिटी बाय किए? वट एवर. हाँ, बाद में वो ब्लर होने वाला है ना. हाँ, वट एवर क्वांटिटी बाय की है. ओके, रेट आप रख सकते हो मेरे. एट वॉट रेट वी हैव बॉट? 1273.55. अच्छा, ये LNT का एक शेयर कितने में बाय किया है? 1200 समथिंग. एंड M&M का एक शेयर कितने में बाय किया है? 700 समथिंग. यहां तक ओके. अब आ गया ये वाला पॉइंट, ब्रोकरेज रेट पर यूनिट. क्या? 0.01. 0.01. अच्छा, ये क्या है बताती हूँ. ये आपको एक अच्छा आइडिया नहीं दे पाएगा, बिकॉज आई हैव समथिंग नोन एज एन एडवांस ब्रोकरेज प्लान. आपको नहीं पता होगा शायद. एडवांस ब्रोकरेज प्लान मतलब क्या होता है? मैं एक लमसम अमाउंट मेरे ब्रोकर के पास जमा कर देती हूँ. लेट्स से 10,000 रुपीज. एंड ऐसे 10,000 रुपीज तुम तुम्हारे पास जमा करो एंड तुम्हारे ब्रोकरेज से ये काटते रहना साइमल्टेनियसली. बट डज ही गिव मी अ वेरी चीप रेट इन दैट केस? यस. ओके, अदरवाइज यहाँ पे क्या आता है बताती हूँ. जनरली द ब्रोकर गिव्स यू अ रेट ऑफ, लेट अस से 30 पैसा. टिपिकली कैसे बोलते हैं? 30 पैसा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 30 पैसा ब्रोकरेज? मीन्स व्हाट विल हैपन? टेल मी. If you buy shares worth ₹100, your brokerage amount will be 30 paisa.
इज दिस ओके? सो यहाँ पे आ गया आपका ब्रोकरेज का अमाउंट, फिर आ गया आपका टोटल ब्रोकरेज. टोटल ब्रोकरेज मतलब व्हाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रोकरेज रेट पर यूनिट. ये आ गया आपका ब्रोकरेज टोटल. नाउ हु कैन टेल मी ये नेट रेट पर यूनिट मतलब क्या गया? दिस इज योर बेसिक मैथमेटिक्स. मान के चलो मैंने एक शेयर बाय किया 100 रुपीज में, माई ब्रोकरेज इज 30 पैसा. व्हाट इज माई नेट रेट? 100.30. इट्स लाइक अ ग्रॉस रेट बेसिकली, कि माई बेसिक बाइंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ये हो जाएगा आपका 100.30. ओके. फिर इसमें लगता है एसटीटी, जिन्होंने सीए किया है. एसटीटी, व्हाट इज एसटीटी? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ओके, ये आपको ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं. इट्स अ मैंडेटरी चार्ज. दिस इज कोई ऐसे मतलब अपने को ऐसे नहीं कर रहे, कोई फेक चीज नहीं है. एसटीटी इज मैंडेटरी, देना ही पड़ता है आपको. ओके, सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया. एंड उसके बाद आपका फेवरेट क्या? जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस. So here you can see CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%. CGST, Central GST, SGST, State GST. 9% पे. 9% of what? Of the brokerage. 9% of the brokerage, not of your total amount. क्यों? ब्रोकरेज के ऊपर क्यों लग रहा है बोलो? सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जीएसटी का अमाउंट काफी कम रहेगा, 18 पैसा इतना ही ब्रोकरेज लगा है मेरा. सॉरी, जीएसटी इतना ही कम लगा है मेरा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ब्रोकरेज इज लाइक योर सर्विस. ब्रोकरेज इज लाइक योर सर्विस. सर्विस के ऊपर आपको लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो जीएसटी विल बी लेविड ऑन व्हाट? द सर्विसेज का पोर्शन, दैट इज योर ब्रोकरेज का पोर्शन. सी, आपको कोई एक रिसीट अगर मिल रहा है तो आपको रिसीट के अंदर क्या क्या लिखा है पता होना चाहिए ना, एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या क्या होता है. ओके, सो आपको यहाँ पे ये सब 2-3 चीजें आ जाएंगी, जैसे सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया. 2-3 मोर पॉइंट्स यू हैव टू पे, कि आपका सेबी के टर्नओवर फीस करके रहते हैं. ऑल दीज आर सम एडिशनल टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच आर लेविड टू यू, बट ये बहुत कम रहते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट स्मॉल पॉइंट्स. बट कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो सबसे मेजर 2-3 चीजें जो हमने सीखी, मेजर पॉइंट्स, क्विकली टेल मी व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? इट्स लाइक अ रिसीट issued by whom to whom? By the broker to the investor. If I am a buyer, will I get it? If I am buyer of shares, will I get it? Yes. If I am a seller of shares? Yes, obviously yes. जैसे मैंने अभी बाय किया था तो मुझे यहाँ पे क्या आया बोलो? नेट अमाउंट पेएबल बाय द क्लाइंट. मैंने मेरे ब्रोकर को कितना पैसा देना है. एंड यही अगर मैंने शेयर सेल किए होते थे तो यहाँ पे क्या आता था? नेट अमाउंट. शेयर सेल किए तो यहाँ पे हु इज इशूइंग इट टू हुम? ब्रोकर इज इशूइंग टू मी ना. सो नेट अमाउंट ड्यू टू द क्लाइंट. ड्यू बोलेंगे ना, ड्यू है फ्रॉम हुम टू हुम? फ्रॉम द ब्रोकर टू द क्लाइंट. बात समझ में आ रही है? पक्का, वेरी गुड. चलो, सो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने बोल दिया. T+2 सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पड़ा अभी. व्हाट इज T+2? ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 वर्किंग डेज. आज मैंने शेयर्स बेचे, कब मिलेंगे? 2 दिन के बाद. आज मैंने शेयर्स बेचे, 2 दिन के बाद क्या मिलेगा? मनी विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 days. आज मैंने शेयर्स बाय किए, 2 दिन के बाद शेयर्स मिल जाएंगे. इज दिस ओके? पक्का? यस. सो आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़े? जस्ट क्विकली लेट अस रैप अप वन बाय वन एंड देन विल स्टॉप फॉर द डे. फटाफट बोलो आज के कौन कौन से कंसेप्ट्स थे. सबसे पहले हमने बोला बोनस शेयर्स. ओके, बोनस शेयर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था? लेट अस से 1:1. मतलब क्या होगा आपका? फ्री शेयर्स, एक के ऊपर एक फ्री, इज अ 1:1 बोनस शेयर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने क्या बोला? क्या मार्केट प्राइस सेम रहेगा? क्या मार्केट प्राइस विल नॉट रिमेन सेम. इफ बोनस इज इनटू द रेशियो ऑफ 1:1, मार्केट प्राइस विल हाफ. ओके, सेकेंड पॉइंट फिर हमने बोला था. सेकंड पॉइंट कौन सा बोला था हमने? सिक्योरिटीज मार्केट बोला था. सिक्योरिटीज मार्केट में 2 मार्केट्स आते हैं. कौन से 2 मार्केट आते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज मार्केट फ्रॉम वेयर यू कैन बाय और अप्लाई फॉर एन IPO. व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर. यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हुम एंड हुम? इश्यूअर, कंपनी एंड द इन्वेस्टर. बट सेकेंडरी मार्केट में इट्स वेरी फेमस. सेकेंडरी मार्केट्स आर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हुम एंड हुम? वन इन्वेस्टर एंड द अदर इन्वेस्टर. इन सिंपल वर्ड्स, BSE NSE क्या है? दुकान है.
दो अलग अलग शॉप्स है जिसमें आपको क्या मिलता है, शेयर्स मिलते हैं बाय सेल करने के लिए. ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट विच वी डिड टुडे, नेसेसरी अकाउंट्स, 3 in 1 वाला फंडा हमने बोला. एक बोला हमने डीमैट अकाउंट, एक बोला हमने ट्रेडिंग अकाउंट, एक बोला हमने सेविंग अकाउंट. हु कैन टेल मी फटाफट डीमैट अकाउंट क्या है? वेयर वी कैन स्टोर द शेयर्स लाइक द कबर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? वेयर यू कैन ट्रेड बाय और सेल. एंड व्हाई डू यू नीड सेविंग अकाउंट? पैसा चाहिए ना ट्रेडिंग. ओके, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी डिड वाज डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? वी डिस्कस्ड अबाउट दैट, पैन कार्ड एंड दिस दैट. नेक्स्ट वन, contract note, the most important one which we did towards the end, that was like a receipt or an invoice which is issued. Okay, so आज के सभी terms समझ में आ गए. What I personally feel is that whenever time permits, एक बार revise करते जाओ ये terms, because you are learning 5, 5, 6 new terms every day. You might forget that, and that is why I am following this कि lecture खत्म होते के time पे एक बार revision, अगले दिन आते ही वापस से revision and cumulative revision लेंगे थोड़ा फटाफट, random revision कि day 1 से लेके क्या पढ़ रहे हैं. So एकदम on the last day आपको ऐसे लगना चाहिए wow, somewhere around 40 to 50 concepts I've learned in the past 10 days and ये सभी मेरे को concepts अच्छे से आ रहे हैं. अभी तक conceptual clarity ओके है? Any suggestion? कोई स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है? ओके एकदम. आज आपको होमवर्क नहीं दिया यार मैंने. अच्छा, you have to tell me कि एग्जाम्पल देना है कौन से कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है. इन्फोसिस ने बहुत रिसेंटली एक बोनस इशू किया है. सितंबर में इन्फोसिस ने बोनस इशू किया है. ओके, अब आपको ये ढूंढना कहां पे है और कंपनी ने बोनस दिया कि नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. मेरे को किसने बताया? किसी ने कान में आके बताया क्या? इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है. वेयर विल आई फाइंड दिस? हाँ, ये BSE NSE की वेबसाइट पे मिलता है. सो टुमारो आई विल शो यू. वेबसाइट ओपन करेंगे कल. ओके, एंड और एक बहुत सिंपल वेबसाइट है, आज आप ये चेक कर सकते हो, moneycontrol.com. You might have heard about this website, www.moneycontrol.com. ओके, चलो आज ये होमवर्क करना है आपने. एक तो सबसे पहले एक आध कंपनी जिसने बोनस रिसेंटली दिया है, या फिर आप कोई भी एक कंपनी बताओ जिसने बोनस दिया है, नंबर 1. नंबर 2, आपने ये वेबसाइट चेक करनी है www.moneycontrol.com, या फिर आपने BSE इंडिया NSE इंडिया किया तो भी चलेगा, बट प्रेफरेबली ये करो. इसमें एड्स थोड़े ज्यादा होते हैं, ये नेगेटिव पार्ट है, बट इसमें डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा मिलेगा आपको. Okay, so I'll also show you how this website, it's a free website, you need not register. So ये हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर बेसिक एनालिसिस ये भी बताऊंगी कल. Okay, so we'll see you tomorrow. Bye bye.